अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में तमिलनाडु मिनिस्टर विश्वनाथन ने सीएम विजय की बर्थडे सेलिब्रेशन के सिलसिले में ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ब्लड डोनेशन कैंप और ऑर्गन डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मिनिस्टर ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर की अहमियत पर जोर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इन कैंपेन्स में हिस्सा लेने की अपील की। பிரசிடென்சி காலேஜ் தமிழகத்தில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த கல்லூரி, மாநில கல்லூரி. பிரசிடென்ட்ஸ் காலேஜ் முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக, முன்னாள் மாணவர்களின் சார்பாக இன்று முதலமைச்சர் பிறந்த நாள் விழாவினை முன்னிட்டு மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டிருக்கிறது. இரத்த தான முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆர்கான் டொனேஷன்ஸ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முகாம் முதலமைச்சருடைய 52வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுக்க இந்த ஆண்டு மிகவும் சிறப்பாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டி உதவி செய்வதைப் போல சமூகம் சார்ந்த, சமூக நலன் சார்ந்த பல்வேறு விதமான நலப்பணிகள், பல்வேறு விதமான நலத்திட்டங்களை அறிவித்து மிகச் சிறப்பான விழாவாக கொண்டாடி வருகிறார்கள். அதற்கு பிரசிடென்சி கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர்கள் இன்று ஒரு விரிவான ஏற்பாடை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த முன்னாள் மாணவர் தலைவர் இந்த தொகுதியினுடைய 2026 தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினுடைய சட்டமன்றத்தினுடைய வேட்பாளர் என் அன்பிற்கினிய சகோதரர் திரு செல்வம் அவர்கள் அதற்கான कांग्रेस स्पोकपर्सन सुरेंद्र राजपूत ने यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को अयोध्या विजिट से पहले हाउस अरेस्ट किए जाने पर बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि हमारे डेलीगेशंस को अयोध्या जाने से क्यों रोका जा रहा। सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर टेंपल डोनेशन फंड्स के हवाले से भी इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी को डोनेशन मनी में एम्बेजलमेंट के गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बयान अजय राय के अयोध्या राम टेंपल विजिट से पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद सामने आया। राम मंदिर क्या किसी के बाप का है या भगवान राम का अपहरण करेंगे ये लोग तय करेंगे कौन मंदिर जाए या ना जाए। अब भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहिए कि जो लोग हमसे कहते थे कि आप राम मंदिर होके आए, हमारे नेता राम मंदिर अगर जा रहे हैं तो उनको रोका क्यों जा रहा है। कौन सी चोरी, कौन सी लूट, कौन सी डकैती, कौन सी छिनैती, कौन सा महापाप छुपाने की आप कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेताओं से डर क्यों रहे हैं। राम मंदिर क्या भाजपा की बपौती है। भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने जो महापाप किया है वो राम जी की कृपा से उभर करके निकल करके सामने आया है। ये गांव गांव जाएगा, गली गली जाएगा, नगर नगर जाएगा, डगर डगर जाएगा और इनके पाप का प्रायश्चित नहीं, इनके पाप की सजा इनको जनता देगी। सीपीआईएम लीडर पी राजीव ने सीएम के सेक्रेटरी के तौर पर एक सीईओ की तकर्री को लेकर कांग्रेस लेड केरला गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लेड केरला गवर्नमेंट की तमाम अपॉइंटमेंट्स मुतनाज़ रही हैं। पी राजीव का कहना था कि हुकूमत की तकर्रियों पर लगातार सवालात उठ रहे हैं और इस अपॉइंटमेंट ने भी नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। The left government had not intervened in the investigation process of the SIT. SIT is constituted by the Honorable High Court of Kerala, and all investigation report was submitted before the High Court. At this time, it's not a point of time to discuss all these things. We will wait what are the findings of the SIT, then we can comment on that. Then what the first decision of this government? They had tried to appoint the counsel of the accused as the pleader of the government specifically for Devasam cases. That was the attempt by this government to protect the culprits.
Actually, the three major accused was found in a single frame only twice. That is along with Sonia Gandhi. Then the Sonia Gandhi or the leader of all India leaders of the Congress or the state leaders had never ready to disclose the person who had brought these three accused to the 10 Janpads. Then all things should be investigated by the SIT. The government gave clean blank check to the SIT for investigation. Only this government had tried to intervene in the investigation and give a direction to the SIT for investigate the role of a specific person. The last government never intervened in the investigation process. But what is actually happening in the country now? The Ayodhya case. Totally, the BJP, the real devotees, what are they doing? These type of big scams are happening in the country. No, this type of investigation under the directions of the court is not happened. Then some issues already reported by the media, that is the rift in between the BJP to protect the accused in this Ayodhya case. All these things should be investigated in the proper manner. शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने अजय राय को अयोध्या में रोके जाने पर बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर अजय राय को अयोध्या में रोका गया तो हम सब वहां पहुंचेंगे। संजय रावत ने मजीद कहा कि वो और उद्धव ठाकरे ऑपोजिशन लीडर्स भी राम टेम्पल का दौरा करने की अपील करेंगे। उनका कहना था कि राम टेम्पल हर किसी का है और किसी को भी वहां जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। राम मंदिर हम सब लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को। क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे। इसलिए महमूद जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है। बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान दिया है। मैं खुद उस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल था और मैं सीबीआई का एक आरोपी हूँ उस मामले में। मैं 3 बार सीबीआई के सामने लखनऊ में उनके कोर्ट के सामने में जाकर मेरा स्टेटमेंट दिया है। हम लोग आरोपी हैं सब उस मामले में। राम के उस संघर्ष में मंदिर के हम सब लोग थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जो घोषणा की थी मंदिर वही बनाएंगे, तब ये सब लोग भाग गए थे ना। बाबरी गिरने के बाद भाग हो गई थी। तो बाला साहब ठाकरे और हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे थे उधर कि अगर वो शिवसैनिक है तो हमें उनका गर्व है, ये बाला साहब ने कहा था। तो ये सब भाग गए। अभी राम मंदिर के मालिक बन गए। राम मंदिर को कोई मालिक होता है क्या? अयोध्या को राम मालिक है। अगर अजय राय को रोका है तो क्यों रोका है? अगर उनको रोका है तो हम सब लोग वहां पहुंचे, सभी नेताओं के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ कोई जात और धर्म का मामला नहीं है। राम सबका है, देश का है। नहीं, रावण में बहुत दुर्गुण थे, लेकिन रावण ने किसी मंदिर की दान पेटी दान पत्र नहीं लूटा था। ये रावण के वंशज है बीजेपी वाले। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को राम टेम्पल विजिट से पहले हाउस अरेस्ट किए जाने पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि अजय राय के बयानात अमन व अमान को मुतासर कर सकते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती ये कदम उठाया है। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि सरयू रिवर उस वक्त सुर्ख हो गई थी जब राम भक्तों को कत्ल किया गया। उन्होंने दावा किया कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और इसी तनाजुर में ये कदम उठाया गया।
देखिए, कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। जिन्होंने राम भक्तों को मारकर पूरी सरयू नदी का पानी लाल कर दिया था, आज वो बहुत ज्यादा उनको चिंता अयोध्या की हो रही है। और अजय राय भी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय किया है। कांग्रेस एमपी के एल शर्मा ने अयोध्या टेंपल विजिट पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टेंपल फंड्स में एम्बेजलमेंट को नहीं रोका जा सका और अब हमें मंदिर जाने से रोका जा रहा, ये नाइंसाफी है। उन्होंने मजीद पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन हिंदूज को अयोध्या मंदिर जाने से क्यों रोक रही है। के एल शर्मा का कहना था कि अयोध्या मंदिर हर शख्स का है और सबको वहां जाने का बराबर का हक हासिल होना चाहिए। ये बयान अयोध्या टेंपल विजिट को लेकर जारी सियासी बहस के दरमियान सामने आया। देखिए, ऐसा है कि मैं ये पीटीआई के माध्यम से ये अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है। तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं। ये मतलब बहुत अन्याय कर रहा है प्रशासन। तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है। कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं? ये मेरा कहना है। यूपी मिनिस्टर नरेंद्र कश्यप ने अजय राय के हाउस अरेस्ट के तनाजुर में कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी लॉर्ड राम को कबूल नहीं किया, इसलिए अब उनके आशीर्वाद हासिल करने का ड्रामा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र कश्यप का कहना था कि कांग्रेस का मौजूदा रवैया सियासी मकसद के लिए है और अवाम इस बात को अच्छी तरह से समझती है। कांग्रेस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है। उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था। जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए। लगता नहीं जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के संघर्ष करने वाले राम भक्तों पर गोलियां चला के उनकी हत्याएं की हैं। भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है। ऐसी पार्टी के लोग राम के दर्शन करेंगे, राम उन्हें माफ करेंगे, मुझे नहीं लगता। फिर भी उनको यदि कोई सद्बुद्धि आती है तो अच्छी बात है। टीएमसी एमपी कीर्ति आजाद ने अजय राय के हाउस अरेस्ट पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस से सवाल किया गया कि वो राम टेंपल क्यों नहीं जाती और अब जब वो जाना चाहते हैं तो उन्हें रोका जा रहा। कीर्ति आजाद ने योगी आदित्यनाथ पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो नाथ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसका अकीदा आइडल वर्शिप पर मबनी नहीं है और इसका सनातन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अजय राय जी को डाला है, अब लोग जाए, पहले पूछते राम मंदिर नहीं गए, अब वो जा रहे हैं तो हाउस अरेस्ट कर दिया है। इससे पता लगता है ये मानसिकता है। और योगी जो नाथ संप्रदाय से आता है ना, वो नाथ संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती। यह नाथ संप्रदाय बिल्कुल सनातन से अलग है, उसका सनातन से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, ये सभी लोग वेदों के विरुद्ध काम करते हैं। ये सभी लोग हमारे पुराणों में जो कहानियां हैं उसके विरुद्ध काम करते हैं। इनको कुछ नहीं मालूम ये मोहन भागवत किस मामले में इसको जेड सिक्योरिटी मिली है, क्या करता है ये, क्योंकि दंगे फैलाता है और लोग इससे नाराज हैं, इसलिए Z+ASL ये सब इन लोगों की मिली भगत है, कुछ नहीं है। ये ठेकेदार बनते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि धर्म जो है वह अफीम की तरह काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। तो ये लोग कुछ काम नहीं करते, धर्म को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लोगों के आस्था के साथ खेलते हैं और मारते हैं।
एन चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना नहीं बल्कि लोगों को एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाना। गवर्नमेंट के मुताबिक टारगेटेड प्रोग्राम्स के जरिए रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज पैदा किए जा रहे, लाइवलीहुड्स को मजबूत बनाया जा रहा और लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट पर फोकस किया जा रहा। ఎన్టీఆర్ భరోసా దేశంలోనే అతిపెద్ద సంక్షేమ కార్యక్రమం. పేదలందరికీ 4,000, 6,000, 15,000, 10,000 ఇచ్చినా ఇక్కడ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. मदुरई में वीसी के चीफ तिरुमावालावन ने AIADMK से 6 MLAs के इस्तीफों पर रिएक्शन देते हुए कहा कि पार्टी को इसकी वजाहत का जायज़ा लेना चाहिए और मसले को अंदरूनी तौर पर रिजॉल्व करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की कॉन्स्पिरेसीज को जगह नहीं देनी चाहिए और पार्टी लीडरशिप को इंटरनल इश्यूज़ को हिकमत अमली के साथ हैंडल करना चाहिए। तिरुमला वालनम के मुताबिक सियासी जमातों के अंदर पैदा होने वाले इख्तलाफात को बातचीत और इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए हल किया जाना चाहिए। அவர் எந்த கோணத்தில் இந்த பிரச்சனையை பார்க்கிறார் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. எங்களை பொறுத்தவரையில் ஆதரவு நல்குகிற அத்தனை கட்சிகளும் வாக்கு தவற வாய்ப்பில்லை. குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்த கட்சிகள் தாவேகாவுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை கட்டாயம் காப்பாற்றும். காங்கிரஸை பொறுத்தவரையில் எல்லா கட்சிகளுக்கும் முன்னதாக அந்த அணிக்கு ஆதரவு மட்டும் நல்காமல் கூட்டணியில் இணைகிறோம், உள்ளாட்சி தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரையில் என்னென்ன தேவைகள் என்பன குறித்து அறிவித்துவிட்டு அவர்கள் அந்த கூட்டணி உறவை உறுதிப்படுத்தினார்கள். அடுத்து இடதுசாரிகள் வெளியிலிருந்து ஆதரவு நல்குகிறார்கள். 5 ஆண்டுகள் வரையில் இந்த ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்பதே இடதுசாரிகளின் விருப்பம் என்பதை திரும்ப திரும்ப அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி வருகிறார்கள். அதே நிலைப்பாட்டைத்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த ஆட்சி 5 ஆண்டுகளுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக இயங்கும் என்று நான் பெரிதும் நம்புகிறேன். அது அங்க போய் பேசின பிறகுதானே தெரியும். முன்கூட்டியே இப்படி நானா சொல்ல முடியாதுல்ல. நான் எப்படி அதை சொல்ல முடியும்? அவங்க இப்ப ஒரு தேநீர் விருந்துங்கிற அடிப்படையில் தான் அழைச்சிருக்கிறாங்க. கட்சி தலைவர்களை மட்டுமின்றி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், இப்ப எங்க கட்சியில 2 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், தலைவர் என்கிற முறையிலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்கிற முறையிலும் நானும் அதில் பங்கேற்கிறேன். रविकुमार। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।